Dear students, Assalamu alaikum. Today's topic is normal distribution. How to fit normal distribution using SPSS. First of all, we open SPSS file, a new file, define a variable using the variable view. We will write here x, the random variable x. Its time is by default numeric, width is 8, decimal 2, and convert the measure into the scale, and then come to the data view and enter the data from 0 to 100. To calculate probabilities using normal distribution, we will click on transform, then compute variable. In the compute variable, we will take the name of the target variable as probability, and then type and label. We can change the type from here, and the width by default numeric, and label is probabilities. Within bracket we will write here it's a CDF. Then continue and select CDF from the function group. This is our function group, and from here we will select CDF. When we click on this CDF, a new window will be having different CDFs of different distributions. Select distribution from here, the normal distribution. So we will drag and select the normal distribution. This one is our normal distribution. So select this normal distribution by double clicking on the normal distribution. Whenever it is double clicked, you can see the function is now in the top window. There are 3 question marks. First question mark stands for quant, second for mean, and third for standard deviation. This is the detail related to this function. So quant is basically the x. We double click x from this window. Whenever it is double clicked, first question mark is replaced by x. We will write here the mean of the distribution. In our case, the mean is 50, and the standard deviation is, in our case, it's 5. And then OK. We can observe that in output window a message appears that execute. The function is executed here with the parameters 50 and 5. And then we will minimize this window, output window, because the output are in the SPSS data file. So we minimize it. This is our data view. The probabilities are calculated here in the 2 decimal places. So using variable view, we can set the decimal points of this data set up to 4 decimal places, because probabilities are always written in 4 decimal places. So come to the data view again. We can see that all the values are now in the 4 decimal places. ये क्वेश्चन जो है इसके स्टेटमेंट में है a random variable x is normally distributed with mean 50 and variance 25. तो हमने इसमें mu and variance को 25 और 50 एंड 25 रखते हुए इसको फिट कर लिया। ये आपके पास जो प्रोबेबिलिटीज आई हैं ये एक्चुअली CDF थी। C स्टैंड्स फॉर क्यूमुलेटिव, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब ए पार्ट देखिए इसका क्या है, ठीक है, ए पार्ट नजर आ रहा है आपको।
ए पार्ट क्या है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ, चलिए इस तरह से। ए पार्ट है इट विल फॉल बिटवीन 0 एंड 40, 0 एंड 40। जब भी आपके पास इस तरह से सवाल होगा तो आपने क्या करना है, इसको लिखना कैसे है, ठीक है, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। स्टेप नंबर 1 मैं इसी में लिखती हूँ जी। स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, ओपन SPSS, डिफाइन अ वेरिएबल x एंड एंटर डेटा। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे जी, बताइए, ट्रांसफॉर्म, देन कंप्यूट वेरिएबल, देन CDF, देन सेलेक्ट नॉर्मल CDF नॉर्मल, डबल क्लिक ऑन नॉर्मल CDF, हाँ जी बिल्कुल, डबल क्लिक ऑन CDF नॉर्मल, write x as quantum, and second question mark is replaced by 50, third question mark is replaced by 5, which is the standard deviation, and target variable is written as probability, and the 4 decimal places is set for the probability variable, and then okay। हम ये 4 डेसिमल ना उसके अंदर से भी कर सकते थे सेट, बाहर आके भी कर सकते हैं, अंदर से भी कर सकते थे, कंप्यूट के अंदर रहते हुए भी कर सकते थे, एंड देन ओके। स्टेप 2 हो गया आपका। अब आपने करना है इसके बाद स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 जो है वो आपका क्या होगा, आपने ये करना है कि इसको इन वर्ड्स लिखना है, प्रोबेबिलिटी 0 to 40 ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 40। ठीक है जी, ये लिख दिया आपने इस चीज को जो हमने ये लिखा हुआ है क्वेश्चन में। इसके बाद आपने क्या लिखना है, इज इक्वल टू, आपने 2 चीजें इसमें लिखनी है। एक तो 0 का आंसर आपका ये लिया है, ठीक है, और 40 का आंसर कहां पर है आपका, वो ये वाला आंसर 40। ओहो, मैंने 40 को 47 कर दिया था, एक्चुअली 40 ही ठीक था यहाँ पर। चलो मैं इसको 40 करके इसको रिपीट करती हूँ 1 मिनट में। कैसे रिपीट करूंगी मैं, ये देखें, हम ट्रांसफॉर्म में गए, लेकिन पहले मैं इसको 40 तो लिख लूँ, इसको लिखा 40 एंड देन ट्रांसफॉर्म और कंप्यूट, और सीधा मैंने ओके कर दिया, ओके करके ओके कर दिया, और फिर इसको मिनिमाइज कर दिया। चलिए उसका आंसर चेंज हो गया, अब 40 पे आ गया 0.0228। ठीक है, ये जो 2 आंसर्स हाईलाइट हुए हुए हैं ये मैंने यहाँ लिखने हैं। पहले इनमें से बड़ा कौन सा आंसर, ऑब्वियसली ये बड़ा है 0.0228 वाला, इसको मैंने पहले लिखना है। यहाँ पे लिखा 0.0228 और माइनस कर देना है इसमें से ये वाला आंसर जो कि कितना है ही 0.0000 भी लिखने तब भी आएगा, माइनस होके यही आंसर आ जाएगा 0.0228। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, ये फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, ये आपकी आउटपुट समझ लें कि ये आपके आउटपुट है। स्टेप नंबर 3 आउटपुट है आपकी। अच्छा, थर्ड इसमें क्या है, 55 से 100। ठीक है, तो शुक्र है मैंने 55 भी लिखा और 100 भी लिखा। इसमें ये 55 है आपका और ये आपका 100 है, तो हम कैसे लिखेंगे, 55 to x 100। ठीक है, अब मुझे कोई बताएगा कि मैं क्या लिखूंगी, कौन सी प्रोबेबिलिटी पहले लिखूंगी, 100 की प्रोबेबिलिटी जी 1.000, और फिर माइनस कर देंगे इसमें से कौन सी, 0.8413। ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, ये आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड है इट विल बी लार्जर, will be larger than 54। ओके, एक्स लार्जर के लिए कौन सा साइन आएगा, ये आएगा। ठीक है, लार्जर देन 54, एक्स लार्जर देन 54। चलिए अब हम इसकी फिगर बनाएंगे, पहले लार्जर देन की फिगर बनानी पड़ेगी। सेंटर में हमारा 50 है क्योंकि मीन है, यहाँ हमारा 0 है और ये 100 है। चलिए बस ये मेन चीजें हमने लिखी। 54 कहाँ होगा, ऑब्वियसली यहाँ होगा, यही 54 होगा ना आपका। लार्जर देन का मतलब क्या है, कौन सा एरिया शेड होगा, 54 से ऊपर वाला, ये वाला एरिया। वो बाहर चला गया थोड़ा सा। अब 54 से जो लार्जर एरिया है वो आपको ये जो प्रोबेबिलिटी दी जाती है
ये CDF है, ये एक इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आप जरा गौर से सुनो। ये CDF है, ये हमेशा आपको 0 से या बल्कि -∞ टू पॉइंट, जो पॉइंट आपने लिखा होता है उस पॉइंट की प्रोबेबिलिटी देता है। आपको कौन सी प्रोबेबिलिटी? ये CDF वाली। इसका मतलब है CDF आपको यहां से यहां तक की प्रोबेबिलिटी दे रहा है। ये क्वेश्चन में ये गिवन है। ठीक है, ये मेरी बात समझ आई है सबको कि जो आपको ये कॉलम में वैल्यूज दी हुई है ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज कहां पर है? 0 से इस पॉइंट तक की। अगर ये पॉइंट यहां होता तो 0 से इस पॉइंट तक की। ठीक है, हमें रिक्वायर्ड है इसके ऑपोजिट। तो हमने क्या करना है? इसको हमेशा 1 में से माइनस करना है। प्रोबेबिलिटी x, अब ये साइन रिवर्स हो जाएगा, <54। ठीक है, ये बात कितने लोगों को नहीं समझ आई? एक्चुअली हाँ, मैं दोबारा बता देती हूँ। दोबारा एक मिनट बता दें। चलिए मैं दोबारा बना देती हूँ। आपको मैं एक जर्नल पहले समझाती हूँ। ये आपकी एक फिगर है, आपकी एक पॉइंट ये मैंने बना दिया। दो प्रोबेबिलिटीज हैं, एक तो इस पॉइंट से पीछे। अच्छा, ये आपके पास कर्व है जिसमें एक पॉइंट है और उस पॉइंट को मैंने शो कर देती हूँ चले रेड लाइन से। अब इस पॉइंट से बिलो भी एक एरिया है और इस पॉइंट से अबव भी एक एरिया है, और टोटल एरिया कितना है यहाँ से यहाँ तक वो भी मैंने आपको बताया था। जी बता दें कितना है ये? 100 100% या 1। ठीक है, यूनिटी, द टोटल एरिया अंडर द कर्व इज 1। अब आपका यहां से यहां तक की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x लेस देन, इसको हम कह दें a। फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज a, तो a कह दूं मैं, ये आपका एरिया हो जाएगा। अच्छा, ये प्रोबेबिलिटी कौन सी होगी? x ग्रेटर देन a, जो आपकी इस कर्व में इस a पॉइंट से ऊपर होगी। ठीक है, a वो ग्रेटर देन के साथ है। अगर हमें ग्रेटर की फाइंड करनी है तो हमें पता है इन दोनों को प्लस करो तो किसके इक्वल आएगा? 1 के, क्योंकि ये लेस की है a से और ये a से ग्रेटर की है। ठीक है, अगर मैं इसको ग्रीन कलर से बनाऊं, लेस की प्रोबेबिलिटी प्लस ग्रेटर की प्रोबेबिलिटी तो 1 के इक्वल ही आएगी। अगर आपको ये वाली फाइंड करनी है ग्रेटर की, तो ये वाला उस तरफ चला जाएगा ना, और वहां जाके क्या हो जाएगा? माइनस। इसका मतलब है आपने हमेशा क्या करना है, जब भी ग्रेटर की फाइंड करनी है ऐसे तो आपको लिखना होगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी लेस देन a, इसके इक्वल होगा। ठीक है, और आपको जो प्रोबेबिलिटीज जो कैलकुलेट की हैं वो एक्चुअली x लेस देन a की फाइंड हुई है। ये पूरा कॉलम कौन सा है? x लेस देन a का, और ये क्या है आपका a। मैंने x इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले भी x लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी x लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये भी x और वो भी x है, उसको मैंने a कह दिया। यानी ये सारे पॉइंट्स इस नंबर लाइन के ऊपर ये क्या है? ये सारे a हैं। ठीक है, कुछ भी a हो सकता है आपका, इनमें से कुछ भी a हो सकता है। तो a से ऊपर की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी पड़ जाए तो आपने क्या करना है? ग्रेटर वाली फाइंड करनी पड़ जाए तो आपने हमेशा 1 में से लेस वाली प्रोबेबिलिटी माइनस कर देनी है। ये बात क्लियर होगी गर्ल्स? ठीक है, आपने यस मैम। हाँ, जो गिवन प्रोबेबिलिटी है, जो कैलकुलेटेड प्रोबेबिलिटी है वो एक्चुअली ये है, और हमने फाइंड करनी है लार्जर की, ये वाली इस तरफ टेल के राइट साइड पे जो जा रही है, ये लार्जर की फाइंड करनी है। तो जब लार्जर की फाइंड करनी होगी तो जो गिवन होगी आपको कि उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो ऑब्वियसली इस तरफ वाली आ जाएगी। ठीक है, अब हमारी प्रोबेबिलिटी है जो हमने फाइंड करनी है वो क्या? ग्रेटर देन 54। तो आपको क्या करना है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन 54। तो लेस देन 54 की प्रोबेबिलिटी कितनी निकली हुई है? ये देखें, लेस देन 54 की 54 था 55 था? चलिए 55 ही लिख लेते हैं। 54 ही है। चलिए हमने 54 पे कैलकुलेट ही ना किया, आपको यहाँ 54 भी एंटर करना चाहिए था। ठीक है, वो एंटर कर लेते हैं ना यहाँ पर 54, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी कैलकुलेट होकर यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 55 भी लिख लेते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी x, सॉरी इसका आंसर कितना आया हुआ है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। ये कितना आंसर आया हुआ है इसका? 55 का 0.5 है, तो क्या आंसर आएगा? 0.5। 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो 0.5 ही आ जाएगा ना, तो इसका रिजल्ट ये आ रहा। अब अगर आपको इसका फोर्थ लास्ट पार्ट देखिए वो क्या है, फोर्थ पार्ट जो है,
Now we have to find probability x less than 67. So we will write here x 67, and this probability is actually probability x less than a. All are the a's. अगर ये एज हैं सारे तो ये प्रोबेबिलिटी लेस की है, तो आपको क्या करना है 67 के सामने की प्रोबेबिलिटी को एज इट इज उठाना है और यहाँ लिख देना है, क्योंकि ये लेस की ही फाइंड की हुई है और आपको लेस की ही फाइंड करनी है। तो क्या आंसर आएगा 0.9997। ठीक है जी, तो ये आपका था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग SPSS। स्टेटमेंट देखिए क्या है, the length of life for an automatic dishwasher is approximately normally distributed with mean is 3.5, standard deviation is 1. If this type of dishwasher is guaranteed 12 months, इनके साथ देखिए क्या दिया हुआ है ईयर, इसके साथ भी क्या दिया हुआ है ईयर, तो इसको भी ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना ईयर बनेगा, ये कितना ईयर बनेगा 1 ईयर। What fraction of sales will require replacement? अच्छा, अब मुझे ये बताइए आप लोग कि जब भी आप कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज खरीदने जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या होता है कि गारंटी मिलती है फॉर एग्जांपल 1 ईयर की, तो इसका मतलब है कि रिप्लेसमेंट कब रिक्वायर्ड होगी, सोच के जल्दी से बता दें मुझे। ये आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर, अगर आपकी मशीन 1 साल के बाद खराब हो जाती है तो आपको मशीन रिप्लेस कर देगी कंपनी, मतलब कि वो दे देते हैं ना, लाइसेंस दे देते हैं, मतलब कि गारंटी दे देते हैं। आप बेटा ये कहना चाह रही हैं गारंटी, इसको वारंटी भी कहते हैं, गारंटी भी कहते हैं। जो वारंटी होती है, अगर आपने अपना मोबाइल फोन खरीदा, वारंटी थी उसकी 6 मंथ्स, तो आपको आपका मोबाइल किसी वजह से बगैर गिरे खराब हो गया, ठीक है, तो आपका 8 महीने गुजर गए थे, तो क्या आपको आपका नया मोबाइल मिल जाएगा, वो रिप्लेस कर देंगे, नया दे देंगे? ठीक कर देंगे। ठीक करेंगे ना। मैं कह रही हूँ वारंटी वो चीज है कि वो आपको वापस करके नया दे देंगे। वारंटी क्या होती है, ये बात पता है? मोबाइल फोन की बात तो आपने देख ली ना, अगर आप लेकर आए और आपने 1 हफ्ता इस्तेमाल किया और आपका ठीक नहीं चला, आप बॉक्स में लेकर आए थे शोरूम से जाकर, उसके डिस्प्ले सेंटर से, कंपनी से, तो क्या होगा, सिर्फ 1 हफ्ते के बाद वापस जाएंगे तो क्या करेगा, वो रिप्लेस कर देगा। क्यों रिप्लेस? यस मैम, रिप्लेस कर देगा, क्योंकि वारंटी टाइम के अंदर हम हम वापस करा रहे हैं। वापस करा रहे हैं। वारंटी थी 6 मंथ्स की, 6 मंथ्स के बाद जाएंगे तो आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगी, और 6 मंथ से पहले जाएंगे तो आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी आपको रिप्लेस करके देती है वारंटी पीरियड के अंदर अंदर, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन दोबारा मैं बुक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। उसने कहा व्हाट फ्रैक्शन, नजर आ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ सेल्स विल रिक्वायर रिप्लेसमेंट, वो कंपनी कितनी चीजों को रिप्लेस करेगी। भी कंपनी अगर वो कह दे कि मैंने 1 साल की 6 महीने की वारंटी नहीं दी, उसने कहा जी मैं 6 साल की वारंटी देता हूं कि मेरा मोबाइल ठीक चलेगा, कोई कंपनी वैसे देती नहीं है ऐसे, लेकिन फर्ज किया कोई कंपनी कह रही है, मैं इसको बंद कर रही हूँ दोबारा, कोई कंपनी कहती है कि मैंने आपको मोबाइल फोन बेच रहा हूं और 6 साल तक ये खराब नहीं होगा, अगर हो गया तो मैं वापस आऊंगा। तो क्या ख्याल है कि 6 साल में यकीनन सबके खराब होंगे, ठीक है ना, इस्तेमाल कर रहे हैं ना कोई मसला तो 6 सालों में आएगा। तो कंपनी को तो सारे फोन वापस आते जाएंगे और कंपनी को पुराने रख रख के वो नए देने पड़ेंगे, तो क्या होगा कि वो तो 100% उसके मोबाइल वापस जाएंगे, सारों को रिप्लेस करना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 100%। कोई बाबा जी होंगे जो अपना मोबाइल बड़े संभाल के रखे बैठे होंगे कि 6 सालों के बाद भी उनके पास बिल्कुल नया चमकता फोन पड़ा होगा, ऐसी बात ही है ना, वरना तो ज्यादातर लोगों के खराब होंगे। इसका मतलब है कंपनी को, चले वो बाबा जी को निकाल दें, अगर हम उस बाबा जी को निकाल दें तो 99% उस कंपनी को अपने मोबाइल फोन रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो कभी भी वारंटी जो है वो इतने ज्यादा पीरियड की नहीं दी जाती। अब उस कंपनी ने कहा मैंने 12 मंथ्स की वारंटी दी है, इसका मतलब है 1 ईयर की वारंटी दी है, तो कितनी फ्रैक्शन को रिप्लेस करना पड़ेगा, जो 1 ईयर से पहले आएंगे कि 1 ईयर के बाद आएंगे? मेरा सवाल बस इतना सा है, पहले आएंगे। आपने फाइंड करना है x लेस देन 1, ये फाइंड करना है, ठीक है। और आपने x में क्या पुट करना है,
एक्स में क्या यहाँ पुट करना है, ये जो इतनी सारी वैल्यूज लिखी हुई है इसी क्वेश्चन में अगर हम चेंज करते हैं सब में, चलिए मैं इस सबको डिलीट कर दूं, ठीक है, ओके कर दिया। अब हमने एक्स में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जी, 1 ही लिखेंगे, बस खत्म। प्रोबेबिलिटी सॉल्व करनी है, ट्रांसफॉर्म, कंप्यूट। अब मैंने कितनी थी उसकी, 3.5 ईयर्स की थी ना, 50 की जगह मैंने लिख दिया 3.5, और वारंटी 1 स्टैंडर्ड डिवीजन थी तो 1 ईयर की थी, 1 लिख दिया, और बस कुछ भी नहीं किया और ओके कर दिया। मेरी बात समझ रहा है कि मैंने क्या किया था, चेक कर ले, सिर्फ मैंने 3.5 और उसके दोनों पैरामीटर्स की वैल्यूज रिप्लेस किए हैं यहाँ पर, ये वाली, बाकी कुछ भी चेंज नहीं किया। ठीक है जी, मैंने यहाँ से ओके किया, ओके कर दिया, आउटपुट विंडो खुल गई, मैंने उसको मिनिमाइज किया, और अब आप देखें कितना आया, 0.0062। इसकी प्रोबेबिलिटी का आंसर यहाँ पर जो मैं लिखूंगी वो आएगा 0.0062, और अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें कितनी परसेंटेज आती है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दें अगर आप, तो क्या आंसर आएगा 0.62%। इसका मतलब है 1% से भी कम चांस है। 1% का मतलब है कि 100 मोबाइल बेचे तो एक वापस आएगा। अब इसका मतलब है कि 100 मोबाइल बेचे तो 0.6 चांस है कि कोई एक वापस आए रिप्लेस होने के लिए, तो इतना उसके लिए एक्सेप्टेबल है कि वो उस को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, यानी 100 में से कोई 0.6 यानी 200 में से एक, अगर हम इसको 0.6 समझे तो 100 में से 0.6 हुआ, ठीक है, और 200 में से क्या हुआ, 1 हो जाएगा, डबल हो गया ना इसका। इसका बाद 200 में से एक मोबाइल चेंज करेगा तो इतना ठीक है, 200 बेचेगा तो एक कोई आ भी गया तो कोई बात नहीं। तो इस तरह डिश वॉशर की बात हो रही थी, तो रिप्लेसमेंट जो है वो इनको रिक्वायर्ड होगी। आपने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज में से 5 क्वेश्चंस कर लेने हैं। मैं भी आपको बताती हूँ कि आपने कौन से 5 क्वेश्चंस करने हैं। ये तो एक एग्जांपल थी जो हमने देख ली। अब चले आंसर भी चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कहाँ पर गया, ये देखें 0.0062, ठीक है, ठीक है ना, ये आ गया आपका आंसर। देखिए एसपीएसएस में कितनी जल्दी हो गया, इन्होंने तो बड़ा कुछ किया, इसमें सॉल्व किया, टेबल शेबल करके कैलकुलेशंस की हैं इतनी सारी, आपने कुछ भी नहीं करना। नोट करें 9.19, ठीक है, और ये देखिए ना, आप कैसे देखिए इसको, इस तरह देखिए कि 9.19 में क्या दिया हुआ है, जीरो मीन, म्यू दिया हुआ है, जीरो सिग्मा दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड। बी पर देखिए उसमें मीन कितना दिया हुआ है 1, स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है 3, और फिर प्रोबेबिलिटीज फाइंड करनी है ये वाली। 9.20 देखिए 19 हो गया, 20 ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड से सवाल है, मीन वेरिएंसेस दी में। 9.21 ये मीन वेरिएंस, अच्छा ये मीन वेरिएंस में ना ये पहला मीन होता है और दूसरा वेरिएंस होता है, ठीक है, एन, और इसके अंदर पहला म्यू लिखा होता है वेरिएंस, दूसरा सिग्मा स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये 100 आपका मीन है और 225 वेरिएंस है सिग्मा स्क्वायर, इसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन बना लें, और फिर ये सारे पार्ट्स इसके आपने सॉल्व करने हैं, ठीक है, ये सारे। अच्छा 21 के बाद 22 देखिए, 23 कर लेना आपने, ठीक है, बल्कि ये 5 भी कर लेना है, 24 तक करके 5 हो जाएंगे आपके। 24 का सिर्फ ए पार्ट करना है आपने, 24 का ए पार्ट, यहाँ तक आपने करना है अपना होमवर्क, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।